کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, پہلے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا. اب کچھ سوشل میڈیا ہے, کچھ ڈے بائی ڈے اس میں امپروومنٹ آتی جا رہی ہے. آج آیا ہوں فرسٹ ٹائم یہاں پہ, بہت اچھا لگا ہے اور بڑی محنت ہے ان کی لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنے کی. کیا لگتا ہے کسی اور بھی بڑے عالم دین کے ساتھ ملنا ہے اتنا ہی آسان ہے جتنا جن سب بیٹھ کے لوگوں سے مل رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں, آپ دوسرے تو عالم دین وہ گاڑیوں سے نہیں اترتے. ایک دفعہ ہمارے ادھر محلے میں مسجد میں مس بھائی صاحب کا محفل تھی, ان کا بیان تھا, تو انہوں نے بولا ہے کہ اس بندے کو نہیں سننا. وہاں سے ایک مشین لگا کے اس کے اندر سے وہ خزانے تھے یا کچھ تھا وہ نکال کے لے گئے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہو سکتا. اب سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے. میں نا ایسے ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا, نماز وغیرہ میں کوئی نہیں پڑھتا تھا جی, میں کیا تک محدود تھا. تو نماز چونکہ علماء کرام نے کافی مشکل بنائی ہوئی تھی. نہیں بالکل بھی کوئی آسان نہیں ہے. جو میں تو کہتا ہوں کہ جو محلے میں امام صاحب ہوتے ہیں وہ بھی بڑا اوکھے چودھری میں بس اٹھ کے رہتے ہیں. نہیں وہ اس وقت جو سوچتے تھے نا وہ بیان کرو, کیوں تھا, کیا تھا اس وقت؟ بابوں کی محبت میں گرفتار تھے, سیدھی بات ہے. لیکن ہماری جو ہے فیملی اس میں ٹی ایل پی والے بھی ہیں, کٹا ٹی ایل پی والے, اس کے اندر اتاری بھی ہیں, اتاری الیاس قادری, بس وہ برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کہا یار ساری زندگی ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ شیعوں کے گھر سے پانی نہیں پینا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہی جعلی ہے, ان کو چھوڑ دیں. تو وہ پہلے ہم کافی بڑی بڑی معاملے کراتے تھے, تو اس کو جو ہے نا میں نے ختم کر دیا بیعت وغیرہ. وہ پیر صاحب ابھی تک مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا مرید کہاں چلا گیا. نماز کا طریقہ دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے کہ پہلے کیونکہ ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں بغیر جی جی, تو میں نے کہا یہ طریقہ نہیں. قادیانیوں والی نماز پڑھتے آپ, آپ کو علماء نے روکا نہیں؟ روکا. میرے جو گاؤں کی مسجد ہے نا, سنی ہے وہ, پہلے میں بھی سنی تھا, صحیح ہے, ابھی الحمدللہ سنی نہیں تھا, ٹنی تھے, وہ مرشد ہے نا ہمارے مصباحی صاحب, انہوں نے ہماری بڑی تبلیغ کی ہے. وہ آئے تھے ایک دفعہ ادھر ایک مسجد میں, انہوں نے بابوں والی بات ہی سنائی ہے, ہم نے ہنس کے نصاب یہ بول رہے تھے یار سنتے گستاخ. میں اللہ تعالی ان کو ہی سن رہا ہوں 1.5 سال سے, بہت سن رہا ہوں, اور ان کا بیان سن کے نماز میں نے شروع کی 5 وقت الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں, اللہ قبول کرے. اچھا جب آپ بیعت میں تھے تو کرامات بھی دکھاتے تھے, پیر صاحب کو نہیں دکھاتے؟ نہیں, یہ ڈرامہ ہے صاحب. اچھا, ہاں, کوئی وہ تو بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کراماتی پیر ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے, سب ڈرامہ ہوتا ہے. بلکہ ہم سے ہماری انویسٹمنٹ لگتی ہے ان کے اوپر. اچھا, آپ کی انویسٹمنٹ لگتی ہے. اب کیا ہو گیا, وہ بابوں کی محبت کدھر گئی؟ مرزا صاحب محبت پہ آ گیا, رکاوٹ بن گئی, سامنے آ گئی. حقیقت صاحب اسلام تو ایک بہت اچھا انسان ہے. ایسے وہ کسی اور جو ہوتے ہیں نا, میں تو خیر کبھی کسی سے گیا ہی نہیں ملنے. کیسے اچھے انسان ہے وہ, علماء کہتے ہیں بد تہذیب ہے, بد اخلاق ہے, آپ کہتے ہیں بہت اچھے انسان ہے. وہ تو سر جی اپنے حساب سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نعرہ کوئی یاد ہے ان کا؟ ہاں جی, لگاؤ نا. پاپے تو شاہی کوئی نہیں. علی بھائی, کہ یہ علی بھائی کا ایک بڑا پن ہے کہ وہ مل رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب کہ خلافت کا امیر جو ہے ہمارے کون ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیشن ختم ہو چکا ہے, حال میں آئے ہوئے لوگوں سے کچھ بات چیت کرتے ہیں, تو آئیے. السلام علیکم. کدھر سے ہے بھیا؟ اسلام آباد سے ہیں جی, 74 سے. اسلام آباد سے جی. خیریت تھی, کیا کرنے آئے تھے؟ جی علی بھائی سے ملنے آئے تھے, کافی عرصے سے مطلب سنتے رہے علی بھائی کو. پہلے ڈاکٹر شاہ صاحب کو سنتے تھے, پھر مطلب صحیح ہے, علی بھائی کا پتہ لگا, تو پھر اسی طرح مطلب علی بھائی کو سنا ہے, اچھا لگا کافی. مطلب ریفرنس دیتے ہیں ہر چیز.
تو اس وجہ سے علی بھائی کو اچھا لگا, اس لیے کافی عرصے سے مطلب بنا رہے تھے پروگرام کے علی بھائی کے پاس آئیں گے مطلب, تو اس اتوار کو شکر ہے اللہ کا بس توفیق ملی ہے تو پہنچ گئے. اچھا, آج فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ پروگرام دیکھا. جی جی. کیسا تعارف ہوا تھا ان کا آپ کو جو پہلی دفعہ ہوا تھا؟ شروع میں جو تھا نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ بہت نیگیٹو تھا, مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ بندہ. آج جو پروگرام دیکھا اس میں کیا دیکھا, یہ نیگیٹو بندہ ہے؟ نہیں بہت پازیٹیو ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی مطلب ہر چیز. ویسے شروع میں ان کا تعارف اچھا نہیں ہوا تھا, لیکن جب آہستہ آہستہ مطلب جب سنتے ہیں نا علی بھائی پھر پتہ لگا کہ واقعی یار کوئی بندہ ہے, مطلب ڈاکٹر شاہ صاحب کے بعد کوئی اچھا بندہ ہمیں ملا ہے, تو بہت موٹیویشن لی ہے. نماز کا صحیح طریقہ ہمیں پتہ لگا علی بھائی سے, بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آئے سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ جی گلزار احمد چودھری. گلزار احمد چودھری, ماشاء اللہ. کدھر سے آئے؟ واگینڈ سے. واگینڈ سے. خیریت تھی؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو آفیشیل ٹور بھی تھا, ایک اشتیاق بھی تھا, لاسٹ ویک میں آیا تھا, لیکن وہ کلیگ ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی اکیڈمی میں ہوتی ہے, تو اس لیے پھر میں نے اسپیشلی آج آیا ہوں کہ آج میں جلدی آ گیا, تو صبح 6 بجے سے نکلا ہوں, تو تقریباً 8 ساڑھے 8 میں پہنچ گیا تھا. ان کا تعارف تھا؟ جی میں نے یوٹیوب پہ سبسکرائبر بھی ہوں ان کا, تو ہاں ریگولر ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں. کیسا تعارف ہوتا؟ نیگیٹو پازیٹیو ہوتا؟ اسٹارٹ میں تو نیگیٹو والے, جب جیسے جیسے ویڈیوز دیکھی تو ذہن کھلتا گیا, باقی لوگوں کو سنا تو ذرا پازیٹیولی آگے بڑھتا گیا. اچھا, کیا وجہ ہے ان سے امپریس ہونے کی, کیا وجہ تھی؟ کچھ چیزیں جو ہائی لائٹ کرتے ہیں چیزیں, جس طرح جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو آگے ہمارے علماء ہیں, ہمیں رانگ سائڈ پہ جسے رانگ نمبر کہتے ہیں اس طرح لے کے گئے ہوئے ہمیں, تو وہ چیزیں دماغ کھلتا ہے, چیزیں سامنے ہوتی, کلیئرٹی آتی ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں انجینئر صاحب کی ویسے ایسی کون سی باتیں ہیں, یہ جو لوگ ہیں اب دیکھیں دن بہ دن رش بڑھتا جا رہا ہے, اور ینگ جنریشن یہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, پہلے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا. اب کچھ سوشل میڈیا ہے, کچھ ڈے بائی ڈے اس میں امپروومنٹ آتی جا رہی ہے. آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی پروگرام سارا دیکھا؟ جی الحمدللہ. کیسا پروگرام تھا آج؟ بہت اچھا, ذہن کھلا ہے, کچھ چیزیں اور مزید سیکھنے کو ملی ہیں, انشاءاللہ دوستوں سے بھی شیئر کریں گے. نیکسٹ ٹائم جب بھی میں کوشش کروں گا سنڈے کے والی دن ہی آؤں تاکہ مزید اس میں نکھار پیدا ہو. بہت شکریہ. آئے سر, آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ فیصل رشید. فیصل بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ یہ میں ضلع تحصیل راولپنڈی, یہ چک بلی خان کا ایریا ہے, وہاں سے. ٹھیک ہے, راولپنڈی سے. ویلکم. یہ بتائیں خیریت تھی, کیا کرنے آئے تھے؟ بس علی بھائی سے ملاقات کرنی تھی, آئے تھے. آج ان کو دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے میں سن 2016 سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ, لیکن آج آیا ہوں فرسٹ ٹائم یہاں پہ. بہت اچھا لگا ہے, اور بڑی محنت ہے ان کی لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنے کی. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا. نہیں, 2016 سے جب آپ سن رہے تھے جی تو اس وقت آپ کو کسی نے روکا نہیں کہ کس کو سن رہے ہو؟ نہیں, مجھے اصل کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ آپ یہ, میں ویسے ہی چلا رہا تھا نا, تو وہ کربلا والی ویڈیو آئی ہے نا, تو وہ میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا یار ساری زندگی ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ شیعوں کے گھر سے پانی نہیں پینا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ایسے ہے. وہ بچپن سے جب ہمیں بتایا گیا تو ہم نے وہی رٹ ظاہر وہی ہم نے رٹ لگائی ہوئی تھی. جب ہمیں حقیقت کھلی تو پھر آگے میں دیکھتا گیا, پھر اسی طرح علم میں اضافہ ہوتا گیا, سنتا گیا, اضافہ ہوتا گیا. پھر اب ایسا اضافہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ میرے بڑے خاندان بھی ساتھ ہیں, اور آئل اینڈ گیس میں کام کرتا ہوں, وہاں ہمارے بڑے مخالفین ہیں, ٹھیک ہے, بنے ہوئے ہیں بہت سارے. ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے گالیوں کے علاوہ یا برا بھلا کہنے کے علاوہ. تو اور دوسری بات جو ہے وہ وہاں پہ نا کچھ چیزیں یہ بھی بڑی ثابت ہوئی ہیں. ہمارے ایریے میں جو پرانے دربار تھے یا وہ جو سلسلے تھے نا, وہاں سے ایک مشین لگا کے اس کے اندر سے وہ خزانے تھے یا کچھ تھا وہ نکال کے لے گئے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہو سکتا. اب سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے, یہ تو یار ان کی باتیں تو سچی نکل رہی ہیں. پار کا ہم تو لوگوں کو جا کے یہ کہیں گے ایک مرتبہ یہاں آئیں سننے کے لیے, تو ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے یہاں. اگر جس کو زیادہ شوق ہے وہ یہاں آ کے خود سوال کر لے, جواب سن لے اپنی رہنمائی کے لیے, ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کوشش کریں گے دوبارہ آنے کی. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ہم جا رہے ہیں. ہم یہاں آنے کے لیے جمعے کو یہاں آئے ہوئے تھے, تلک والا ایک بندہ تھا اس کے پاس رکے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ وہاں سے آتے آتے اس دفعہ ہو کے جائیں. جی چلو, بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अली मुआज। अली मुआज। अली मुआज। जी अली मुआज भाई किधर से आए हो? लाहौर से हैं। लाहौर से। खैरियत थी, क्या करने आए थे? बस इंजीनियर साहब से मिलने आए, उनकी मोहब्बत खींच के लाई है हमें। अच्छा, वैसे तो जेलम क्या हमारा काम है, सिर्फ मिर्जा साहब से मिलने आए हैं, इनकी मोहब्बत। अकेले आए हो? नहीं दोस्त भी है साथ। दोस्त भी है। अच्छा ये बताओ इनका तारुफ कैसे हुआ था? तारो मुझे तो पॉजिटिव हुआ था, मैंने तो सोशल मीडिया से सुना था। मैं पहले भी किसी मतलब के ना बरेलवी था ना वाबी ना सुन्नी, यानी कि न्यूट्रल था मैं। तो अल्लाह ताला ने इनको मौजा बना के भेजा हमारे लिए, तो इनको सुना तो फिर समझ आया और इनसे मिलने की तड़प है, कोई चाहत हुई तो इंशाल्लाह टाइम लगा के इनसे मिलने आए। आज दिल को सुकून आ गया, इंजीनियर साहब से मुसाफा किया, मिलो, बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा अंदर गए हो, मिल के आए हो? जी मिल के आए। क्या लगता है किसी और भी बड़े आलमी दीन के साथ मिलना है इतना ही आसान है जितना इंजीनियर साहब बैठ के लोगों से मिल ऐसी रहे कोई बात नहीं। आप दूसरे तो आलमी दीन वो गाड़ियों से नहीं उतरते, वो तो गाड़ियों से उनकी सिक्योरिटी उतनी होती है, उनसे मिलने नहीं देते। इंजीनियर साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अकेले ने पूरे पाकिस्तान को उन्होंने काबू किया हुआ, यानी कि हर बंदे को उन्होंने काबू किया हुआ, बहुत बड़ी बात है इंजीनियर साहब की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे सर। ठीक ठाक सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक भाई। मोहम्मद इशफाक भाई किधर से आए हैं? पत्तों की से हैं। पत्तों की। फूलों के शहर पत्तों की से। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। फूल भी लेके आए हैं माशाल्लाह। इंजीनियर साहब के लिए हम। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं आए किधर से, खैरियत थी? जी ये ना ये कुछ इस तरह है कि इनसे जो रूहानी लगा हुआ है वो तो 3-4 साल से है, 4 साल पहले ठीक है। मैं ना ऐसे ही वीडियो देख रहा था, नमाज वगैरह में कोई नहीं पढ़ता था जी, मैं क्या तक महदूद था। तो नमाज चूँकि उलमाए किराम ने काफ़ी मुश्किल बनाई हुई थी, तो ये सामने इनके नमाज का तरीका आया मेरे कि बड़ी शार्ट सी टोटल 17 रकातें हैं। सही है। तो आप बच सकते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। फिर मैंने कहा भी यार ये तो आसान हो गया काम। तो फिर मैंने उस वक्त से जो है ना नमाज मैंने शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिलने का इश्तियाक हुआ, मैंने कहा जी जो आपका मैं तो पहले बैत था जो इनकी वीडियो देखी, यानी एक पीर साहब के मरीद थे, उन्होंने कहा कि ये तो काम ही जाली है, इनको छोड़ दें। तो वो पहले हम काफ़ी बड़ी बड़ी मामले कराते थे, तो उसको जो है ना मैंने ख़त्म कर दिया बैत वगैरह। वो पीर साहब अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरा मरीद कहाँ चला गया। अच्छा पीर साहब आपको ढूंढ रहे हैं? पीर साहब ढूंढ रहे हैं कि मेरा मरीद कहाँ गया आज। सही हो गया। नहीं आपने सिर्फ इनकी पीर साहब की बैत तोड़ दी सिर्फ इनके नमाज के तरीके या शादी की वजह से, या उसके अलावा और भी लेक्चर सुने? नहीं सारे लेक्चर सुने। सही है। पता चला ये काम ही हो रहा है, ये दीन ही कोई हो रहा है। अल्लाह ताला ने इनके जरिए एक पूरी हदायत अल्हम्दुलिल्लाह, दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद वो जब कहते हैं ना कि वो एक फितना बरपा है, वो खुद ही कह रहे थे अली भाई, वो वाकई फितना बरपा है। अच्छा जब आप बैत में थे तो करामात भी दिखाते थे पीर साहब को? नहीं दिखाते? नहीं ये ड्रामा है साहब। अच्छा हाँ कोई बैत वो तो बड़े बड़े दावेदार होते हैं, जो तो बड़े बड़े करामाती पीर हैं और ये भी नहीं है, सब ड्रामा होता है। बल्कि हमसे हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है उनके ऊपर। अच्छा आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है? क्योंकि हम पैसे देते हैं ना, हम इंतजाम करते हैं। तो जब बैत तोड़ी तो फिर रिकवरी ली? नहीं उनको छोड़ ही दिया ना जब। अच्छा, उनको समझ आ गई भी ये मरीद गए हाथ से। मरीद क्या? उन्होंने पैगाम काफ़ी भेजे, आए मेरे पास पैगाम। अच्छा तो थोड़ा सा जो तगड़ा मरीद होता है, मैं चूँकि एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ मैं भी। हाँ ठीक है माशाल्लाह। तो भाई मेरे वकला मैं एडवोकेट भी हूँ साथ, तो वो एक तगड़ा मरीद का थोड़ा सा होता है इस तरह। अच्छा तो अब हाल ये है कि मस्जिद में 3 मौलवी मेरी वजह से भाग गए हैं। अच्छा है तो वो एक खुतबे में जुमा का खुतबा हो रहा था, मैंने कहा आप कुरान और हदीस सामने रखें। तो एक में उसने मुझे बर्दाश्त किया, नेक्स्ट में उसने बर्दाश्त नहीं किया, तो वो खुद ही बोल के मुझे कहता कि लगता है कि आप इंजीनियर को सुनते हो। तो मैंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, आपको किसने कहा, लेकिन आप कुरान और हदीस कुरान रखे सामने। बिल्कुल सही है। तो इंजीनियर साहब ने खुद बताया कि मेरा आप ना ले नाम, चाहे अगर कुछ ज़्यादा मसला बनता है तो आप अल्लाह के दीन को और बात को आगे पहुँचाएँ। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा जी मैं तो उनको जानता ही नहीं, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। सही है। तो उस वजह से वो 3 मौलवी भाग गए। अच्छा। तो दो जुमे मैंने खुद खुतबा दिया बैठ के माशाल्लाह। तो बोलने का फ़न तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आप मौलवी और रेंज करते। मैंने कहा मैं भी ड्यूटी नहीं दे सकता, आप मौलवी और रेंज कर ले। अब वो चौथा मौलवी आया हुआ है मस्जिद में माशाल्लाह। तो शुक्र अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। गए उस्ताद इस मोहतरम से मिल रहे हैं? नहीं अभी वो लाइन लगी हुई है, अभी तक जाता हूँ। चले हो गया, बहुत शुक्रिया। आइए भैया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? एहतिशाम नाम है। एहतिशाम किधर से आए हो? पिंडी से, चक्री रोड से। पिंडी से खैरियत थी? क्या करने आए थे? बस
उस्ताद मोहतरम को सुनने आए हैं। उस्ताद मोहतरम कब से उस्ताद मोहतरम बने, तब तारुफ हुआ इनका? एक दफ़ा हमारे उधर मोहल्ले में मस्जिद में मिस भाई साहब का महफिल थी, उनका बयान था, तो उन्होंने बोला है कि इस बंदे को नहीं सुनना। मुर्शिद ने बोला? हाँ उन्होंने बोला, हाँ जी उन्होंने बोला है जी इस बंदे से बाज रहे हैं, इस बंदे को नहीं सुनना। तो अच्छा, वो पिंडी में आगे क्या के? हाँ उन्होंने उधर मोहल्ले में आए थे ना मस्जिद में, तब तक आप नहीं जानते थे? नहीं जानते, अच्छा, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा आगे चलते हैं। तो उसके बाद फ़ोन में देखा है इनकी एक दो वीडियो सुनी है, तो वो दिल किया, फिर उसके बाद लगातार। क्यों दिल किया? क्या क्या उस वीडियो में क्या था? लतीफ़े सुनाते हैं, क्या था? नहीं बहुत मतलब इन्होंने जो बातें बताई हैं वो मौलवियों की बातें और थी, और इल्मी बातें हाँ, थी। इल्मी बातें सही हो, सही हो बातें की। हाँ अच्छा, रोका नहीं फिर किसी उलमा ने, किसी मौलवी साहब ने? बस अभी फ़िलहाल किसी को खुद ही सुनता हूँ, घर वालों को भी बताता हूँ, वो कहते हैं जी ये तो वो भी नहीं मानते, खुद ही सुनता हूँ। अच्छा, वो नहीं मान रहे अभी? घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंसेप्ट माशाल्लाह जी। घर वालों को दावत दे रहे हो? हाँ जी घर वाले दावत तो देनी है ना ये रहा। हाँ, ये जो शिरक है उससे जान छुड़वानी है और कायदे नज़रियात तो ठीक करवाने हैं ना जी। अंदर गए हो, मिल के आए हो? हाँ जी मिल के आया हूँ। क्या लगता है किसी और बड़े मिस भाई साहब को जब उस महफिल में बैठे थे मिले थे? नहीं मिले थे, नहीं क्यों यारा? उनके साथ बंदे थे तो उन्होंने नहीं मिलने ही नहीं दिया। तो फिर इंजीनियर साहब मिले? हाँ जी मिले हैं जी, बहुत अच्छा उन्होंने साथ इधर आके बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है भैया? मेरा नुमान अली नाम है। नुमान अली भाई, किधर से आए? मैं जेलम टाने वाला से। अच्छा, हमारे अपने ही? जी अपने। अच्छा, आए हो? जी फर्स्ट टाइम। कब से सुन रहे हो? तकरीबन 2 साल हो गए। दूर था टाने वाला? नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, मस्कत में था तो। ठीक ठीक ठीक, जस्टिफाई होगा। तारुफ कैसे हुआ था आपको? आप तो झेलम के थे और झेलम के ही अली भाई थे, आपने क्या क्या सुना इनके बारे में? सुना तो मैंने बाद में था, पहले मैं यूट्यूब पे ना नमाज का तरीका देख रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा पहले, क्योंकि हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं बगैर रफ़े। जी जी। तो मैंने कहा यार ये तरीका नहीं, कादियानियों वाली नमाज पढ़ते आप? हाँ। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने वीडियोस देखना शुरू की ना, तो मैंने कहा यार ये बात तो ठीक आ रही है, मसला तो हमारा बना हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम नमाज का तरीका चेक किया, तो फिर मैंने नमाज शुरू की, तो फिर उसके बाद मैंने हक बयान किया और मैंने फिर घर में भी बताया, दोस्तों के भी बताता हूँ। तो मेरे से ज़्यादा मुझे मसला वहाँ पे होता है जो लोग ने कभी नमाज भी नहीं पढ़ते और कुरान और हदीस के मानते भी नहीं हैं। ठीक है, अगर उनको किताब दिखा दो ना भाई ये लिखा हुआ है, नहीं हमारे पीरों ने बता दिया वही है, हमारे माँ बाप तो नमाज ऐसे पढ़ते थे तुम ऐसे शुरू कर दिया। तो उधर से मैंने कहता हूँ यार ये देखो कुरान के अल्फाज हैं, ठीक है, उसके बाद ये हदीस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आज से 200 साल पहले 300 साल पहले तो तर्जमे नहीं थे आए उर्दू में, अभी आए हैं 10 साल पहले, हमें 10 साल पहले मिले हैं। ठीक है, 100 साल पहले बने हैं लेकिन 10 साल हमें मिले हैं। तो हक को हक मानो, बातिल को बातिल मानो, ठीक है। तो जो भी पता चल गया कि नमाज का तरीका ये है तो उसको फिर आप चेंज करो नमाज को, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, तौबा करो अपने अंदर क्यों मिल के आए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है किसी और भी बड़े आलिम दीन को मिलना इतना आसान है? मुश्किल है। अच्छा, कुछ अंदर शंदा लेते हैं? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सेटिस्फाइड? चलो जज़ाकल्लाह। सर वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भैया? उमर बेग। उमर मिर्ज़ा। उमर मिर्ज़ा कादियानी? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। नहीं मिर्ज़ा है ना? नहीं वो तो कास्ट है मेरी बेग। तो ये इंजीनियर साहब को साथ मिर्ज़ा लगता है, वो कहते हैं कादियानी? इंजीनियर तो मैं भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। डबल कादियानी, फिर वो इंजीनियर भी है और मिर्ज़ा भी। नहीं माजरत के साथ ये तो ऐसे जोक बात की है, असल में ना आपको पता मत मारी है मौलवियों ने ना, ये मत मारी भी है। वो कहती है वो मिर्ज़ा, कोई तहकीक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतना क्या है कि वो कहते हैं जी मिर्ज़ा ही है। जी यही बात है कि नहीं है ऐसे? सही बात। और हम लोग भी इतने बुद्धू बने हुए हैं, कितने बंदे ऐसे आते हैं कहते हैं वो मौलवी साहब कह रहे थे कादियानिया, मैंने कहा हाँ मिर्ज़ा आ रहा है। मिर्ज़ा तो कास्ट है ना, ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हो तो कि दिमाग खुले। अच्छा कैसे आना वो? मैं भाई कल ही आया हूँ बाहर से, तो आज मैं अपने घर के साथ आया हूँ, इनको नेट पे सुनता था तो इसलिए आया हूँ। है किधर से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात सराय आलमगीर से। गुजरात सराय आलमगीर से। अच्छा खैरियत थी? हाँ। कैसे आना हुआ यहाँ पे? वैसे इनको नेट पे सुनता था तो कब से सुनता? मैं 2-3 साल से सुनता था। कैसा सुना? अच्छा पाया? ऐसा सुना था कि मैं नेट पे इनको देखता हूँ तो मेरे कज़न एक ये था और एक मेरा और कज़न है, ये मुझे बुरा भला अपने बोलते थे ये इनको क्यों सुन रहे हैं। अच्छा, ये फारग है, इससे ये सही है।
अभी ऐसा वक्त आया है ये मुझे लेके किधर आया। सर सलाम अलैकुम, क्या नाम है आपका? मुबशर अब्बास। मुबशर भाई, क्यों रोकते थे? बस मिर्ज़ा साहब को सुनते थे, 2 साल उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। नहीं वो उस वक्त जो सोचते थे ना वो बयान करो, क्यों था, क्या था उस वक्त? बाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। हाय हाय तो हाय सीधी बात है, इसलिए मिर्ज़ा साहब अच्छे नहीं लगते थे। ठीक हो गया। गाली गलौज भी, तीसरी दफा है, फिर आज अल्लाह मुझे से माफ़ी लेके मांगी, आया। मिर्ज़ा साहब से भी माफ़ी मांगी जो माजी में गाली गलौज चीज़। सही है, सही है, सही है। सही है, तो कोई बात नहीं, आपका राइट बनता है। 2021 में सुनना शुरू किया, अभी 2024 है। अब क्या हो गया, वो बाबू की मोहब्बत किधर गई? मिर्जा साहब सामने मोहब्बत पे आ गया, रुकावट बन हकीकत गई। सामने आ गई, हकीकत सामने कुरान आ गई। पढ़ा, नहीं हदीस सुनते, जो ये बताते हैं वो फिर सर्च भी करते हैं, क्या ये बात लिखी हुई है, सही है, फिर हम ये नहीं इन्होंने जो बोल दिया वही बिल्कुल जी, होना भी यही चाहिए, करते हैं फिर बात करते हैं, होना भी इनको यही मैं यही बोलता था। अब ऐसा हुआ है कि ये तीसरी दफा आ रहा है, मुझे आज ये लेके आया, मुझे नहीं था पता अकेडमी का, ये मुझे लेके आया। फर्स्ट टाइम आप भी आए हो आज? तकरीबन 4 दफा आते रहे हो? हाँ, काफी टाइम हो गया। मुलाकात भी है इंजीनियर मुलाकात साहब भी से? है, पहले भी बहुत बार हुई है। सही हो जी। गया। तो आपने एकेडमी का माहौल जो देखा, माशाल्लाह कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम है सारा। सिक्योरिटी है, आपको उलमा ने रोका नहीं? रोका है, फिर? रोका है। अच्छा। मेरे जो गांव की मस्जिद है ना, सुन्नी है वो, पहले मैं भी सुन्नी था। सही है। अभी सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, टुन्नी थे, हाँ, वो वही कहे थे। सुन सुना के सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह टुन्नी। मुस्लिम हूँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में मेरी बहस हुई इमाम साहब से। अच्छा, बोला कि वो गुमराह है, अच्छा। गुमराह हो। सीधे ही आप भी गुमराह हो? हाँ। हाँ, मैंने बोला सही है, अभी क्या तो बोल कोई सकते गुमराह हैं। ही हो ना, इमाम साहब की नहीं सुनोगे तो गुमराह तो हो गए ना। ये बात है। सही है। अच्छा ब्रदर, आज आप फर्स्ट टाइम आए हो? जी, first आपने आज एकेडमी का पूरा दर्स सुना, जी, पूरा माहौल भी थोड़ा देखा? लेट हो गए थे आने के लिए, क्योंकि मैं कल ही आया अच्छा हूँ। अच्छा, माहौल एकेडमी का देखा बहुत सारा बेहतरीन कुछ, था। कैसा माहौल था? ये इनके ऊपर साफ एलिगेशन लगाते हैं उलमा, वो कहते हैं बंदे अपने होते हैं, सवाल भी अपने लोग करते हैं। सिक्योरिटी वाले अपने होते हैं, बाकी सब बाहर से आए होते हैं, दूर दराज से। बाकी तो इनके अपने सिक्योरिटी तो बनती है इनकी, तो बाकी तो बाहर से लोग आए होते हैं। सही, चलो जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सॉरी, क्या नाम है? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन जी, हमारे पास भी है। अच्छा, किधर से आए हो? लाहौर से। लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह? लाहौर शादरा से। शादरा से आए? जी, शादरा। ठीक है, शादरा शहर से? शादरा एक टाउन है ना, और एक शादरा उधर शहर ही समझ लो, सिटी है। सही हो गया, ठीक है। खैरियत थी, कैसे आना हुआ? कैसे पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं अली भाई को, हर दफ़ा आने की ख्वाहिश रखते हैं कि इस वीकेंड पे चले जाएं, इस वीकेंड पे चले जाएं। कुछ शादीशुदा भी जॉब भी करते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं निकलता। सही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वीकेंड पे टाइम मैनेज हो गया, फिर अली भाई को मिलने के लिए आए हैं। क्यों मिलना था? अली भाई ने क्या कर दिया था? अली भाई ने हमें कुरान और हदीस की वैल्यू दी है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ है जो आपके लिए आखिरत में काम आएगी। ज़बरदस्त। इनका जो तारुफ फर्स्ट टाइम हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव था? मैंने तो फेसबुक से सुना था, जबकि मैं फेसबुक शुरू में स्टार्ट की थी ना सुनने के लिए, तो मैंने 4-5 साल फेसबुक से ही सुना था। क्या बातें थी ऐसी जो दिल किया कि इसको सुनूं? तब मैंने जब पहली दफ़ा ये बात उनकी सुनी थी ना, तब वो जो उनके एक बुजुर्ग के बारे में मशहूर है ना, गौसे पाक के बारे में, उन्होंने मगरिब के वजू से 20 साल फजर की नमाज ईशा के वजू से पढ़ी, तो इसके ऊपर फिर मैंने उनको वीडियो सुनी, फिर मैंने तहकीक की, फिर और भी वीडियो मज़ीद सुनी, फिर दिमाग खुलता गया, फिर पता चलता गया कि क्या चीज़ कहानी है और क्या रियलिटी है, कुरान हदीस इसके बारे में क्या कहती है, जो उलमा इधर मस्जिदों में बयान करते हैं। किसी आलिम दीन ने रोका नहीं, किसी उलमा ने रोका नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिद हैं, माँ बाप हैं जो वालिद हैं, और भाई वो सभी इसी सुनते हैं। अच्छा, वो न्यूट्रल हैं, उनकी वजह से नहीं मसला। लेकिन हमारी जो है फैमिली, उसमें TLP वाले भी हैं, कट्टर TLP वाले, उसके अंदर अतारी भी हैं, अतारी इलियास कादरी की मस्जिद भी, बस वो बुरा भला कहते हैं, उनकी तरफ से गालियाँ मतलब गुस्ताख मुर्तद वगैरह ही सुन लेते हैं, तो कोई नहीं, सब्र कर लेते हैं। दावत दी है उनको भी? बड़ी दफ़ा दी है, बहस की है। अच्छा, फिर उनको कुरान और हदीस पेश किया, लेकिन जो नहीं मानता फिर उसके लिए फिर चले उसके दुआ कर दी कब अल्लाह इनके नसीब में हिदायत करे। हम तो आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। कैसा था आज का माहौल? ज़बरदस्त। अच्छा, बंदे इनके अपने तो नहीं होते? नहीं। अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था, एक मुफ्ती साहब कहते हैं वो सवाल तो करने नहीं देता, अपने बंदे होते हैं। ये वो शुक्र है, अपनी मर्जी से जो मर्जी सवाल करूँ अच्छा जवाब देते हैं, जो उसके रिलेटेड जामिया अंदर गए थे, मिल के आए? हाँ जी, मिल के आए हैं। अच्छा, और भी किसी आलिम दीन को मिलना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी कोई आसान नहीं है। जो मैं तो कहता हूँ कि जो मोहल्ले में इमाम साहब होते हैं वो भी बड़ा औखे चौधरी में बस उठ के रहते हैं, तो बगैर मुट्ठी गर्म किए वो भी लिफ्ट नहीं कराते। सही कह रहे हैं आप। ये तो फिर भी अली भाई की सादगी, अल्लाह ताला उनको मजीद लंबी उम्र दे और इसी तरह दीन का काम करते रहे। लेकिन आम लोगों को, आम मौलवियों को इस तरह मिलना भी आसान नहीं है, ये सही बात है। आमीन, बहुत शुक्रिया। आए जाए, कौन नाम है? वालेकुम सलाम, क्या नाम है भैया? अब्दुल हन्नान।
अब्दुल हनान भाई किधर से? मैं सियालकोट से। सियालकोट से जी। सियालकोट तो हमारा अपना हो गया। आज वोटिंग हो तो सियालकोट में इंजीनियर साहब के स्टूडेंट साहब से ज़्यादा निकले। हमारे पहले तो उधर हमें बुरा भला कहते थे हमारी मस्जिद में, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो हमारे लड़के हैं जवान जो हमारी एज के हैं सारे हमारे दोस्त वो सारे अब मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त हमारी क्रिकेट की टीम में सब इनको सुनते हैं और मानते भी हैं। वो मुर्शिद है ना हमारे मिसबाई साहब, उन्होंने हमारी बड़ी तबलीग की है। वो आए थे एक दफ़ा उधर एक मस्जिद में, उन्होंने बाबू वाली बात ही सुनाई है, हमने हंस हंस के नसाब ये बोल रहे थे यार सुनते गुस्ताख हो। हमें नहीं वो बाबू की इतनी इतनी कहानियाँ सुनाते थे ना, हमें वो सुन के हंस आ जाता था सबका। तो पहले नहीं आता था जब इंजीनियर साहब नहीं बोलते थे तब तो हम सुभान अल्लाह पढ़ते थे, पढ़ते थे ना? अच्छा, इंजीनियर साहब ने दिमाग खोला जी। अच्छा, इंजीनियर साहब की कौन सी बातें थी जो आपको लगा कि यार ये बंदा बड़ी अच्छी बातें करता है? उनकी अच्छी बातें थी बाबू के मुतालिक। हमारे जो घर वाले हैं और रिश्तेदार हैं वो इन बाबू को मानते हैं। 11वीं शरीफ दिलवानी मैंने मना करना अपनी मदर को, पर वो नहीं थे मानते। फादर जो है मैं फादर को बोला, फादर कहते हैं हाँ ठीक। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते रहा ध्यान से, वो एक महल्ले का आदमी हमारे घर आ कहते तुम्हारे बाप से मिलना। मैंने कहा ठीक है। मेरे पापा ने जब बोला मैंने अपने पापा हदीस वगैरह सब कुछ बताया, वो कहते तुम सही राह पे हो, तुम चलो। माशाल्लाह अब्बू ने साथ दिया? अब्बू ने साथ दिया। अब्बू में कोई रोक टोक नहीं है घर से। और अब्बू को दावत दी? जी। अब्बू को भी बताओ ना, अपने भी कहा ठीक करें। वो सब पता है उनको। अब्बू को लेके आयो? नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आया हो, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इंजीनियर साहब से मुलाकात हुई? मैंने सोचा था इतना आसानी से कैसे मिलेंगे, ये मिल लिया माशाल्लाह। चलो अब्बू को भी आया नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, क्या नाम है? जी मेरा नाम सकलैन अब्बास है। सकलैन भाई किधर से आए हैं? जी मैं पाड़िया वाली के साथ है, गांव सईदा से, तहसील फालिया। फालिया? हाँ जी। फालिया से? फालिया कितनी दूर है जी यहाँ से? ये तो तकरीबन 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। खैरियत थी, क्या करने आए थे? जी अली भाई से मिलना था। मैं कल सऊदी अरब से आया हूँ। अच्छा, कल आया घर और आज फौरन इधर सुबह। कल सऊदी अरब से आया? हाँ जी। इतनी क्या जल्दी थी? जी मैं उधर ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं चलाता हूँ। सवाल भी आज आपका आया है। मैं अल्लाह इनको ही सुन रहा हूँ 1.5 साल से, बहुत सुन रहा हूँ। और इनका बयान सुन सुन के नमाज मैंने शुरू की 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कबूल करे और सारा क्रेडिट इनको जाता है। पहले भी पढ़ते थे लेकिन कभी पढ़ ली कभी इनके साथ जो वो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी रफ़ाई अलदैन के साथ शुरू की नमाज और 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। और गांव में जो है ना वो मैं हूँ और एक ऑलरेडी लड़का इधर आया था वो, बस। उसके अलावा हम जो मैं कल से नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरा भतीजा ये बोल रहा था कि मुझे वो लड़के सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा चाचू नमाज अब कैसे पढ़ रहे हैं इधर गांव में। गांव इतना बड़ा नहीं है तो कैसे पढ़ रहे थे वो? तो वो बोलते थे कि ये क्या तरीका ये कर रहा है। अच्छा। बाकी तो वो सारे आम रूटीन में ही पढ़ते हैं। सही है। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब है कि जो कुरान के या हदीस के मुताबिक जो तरीका कार है ना, मैंने उसके साथ चलना है। और बाकी वो दिल में हसरत बहुत ज़्यादा थी कि मैंने जाना है। मैं वेट कर रहा था कि मैं छुट्टी कब जाऊं और कब। अभी मैं 10-15 दिन के लिए आया हूं। सही है। मैंने कल देखा कि आज संडे है तो फौरन जो ये मैं 2-3 महीने से प्लान सऊदी अरब में कर रहा था। सही है। कि मैं टिकट भी लिए थे हिसाब से लूँ कि मैं ईद करके फौरन वापस जाना है। और वो मेरी मुलाकात भी हो जाए क्योंकि नेक्स्ट संडे को तक तकरीबन आ जाएगी ईद। हो सकता है इधर ना आ पाऊँ या उधर कोई मसरूफियात और आ जाए। तो अभी भी मसरूफ था लेकिन घर वालों को मतलब यही बीवी को बता गया कि मैंने लाजमी जाना है, बाकी किसी को नहीं बताया। तो भाई भी वो सारे हैं खिलाफ ही बात नहीं, वो बोलते थे किसको सुन रहे। तो भाई उधर 7 बार भी होते हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। मैंने बोला कि जो मुझे अच्छा लग रहा है जो मेरे लिए बेहतर है वो मैं कर रहा हूँ। आपको तारुफ इनका उधर बाहर हुआ था सऊदीया में या इधर हुआ था पाकिस्तान से? सऊदीया में हुआ था। तो भाइयों को दावत दी नहीं आपने? भाइयों को दावत दी लेकिन कोशिश करता हूँ, नमाज तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन ऐसे ही कभी पढ़ ली कभी छोड़ ली। कोई लेक्चर सुनाए ना, उनकी मर्जी का सुनाए। लेक्चर वो बोल सुनने को तैयार नहीं। क्या मैं बहुत कोशिश करता हूँ। चले अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। आप बताएं आपका आना जो के साथ ही सऊदीया से सीधा है कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बड़ी हसरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। ये सारा माहौल पहले भी मैं वीडियो में जज करता था। सही है। सारा माहौल देखा हुआ क्या तरीका कर है, कैसे आते हैं, लोकेशन वगैरह मैंने वो चेक की हुई थी ऑलरेडी। लेकिन वो सुबह अल्लाह इधर मैं आके पहुंचा
मतलब कि गड़बड़ नहीं हुआ, रास्ता नहीं किसी से पूछना पड़ा, कोई मसला नहीं हुआ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून माहौल था, बहुत बड़े अच्छे तरीके से बात उन्होंने की और सारा सिस्टम भी बहुत, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत मतलब कि ये सबसे मुलाकात भी हुई, इंजीनियर साहब से मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह हुई, उनसे सलाम तो हुई, बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे वो किसी और जो होते हैं ना, मैं तो खैर कभी किसी से गया ही नहीं मिलने। कैसे अच्छे इंसान है वो? उलमा कहते हैं बद तहजीब है, बद इखलाक है, आप कहते हैं बहुत अच्छे इंसान है। वो तो सर जी अपने हिसाब से कहते हैं। अच्छा, मैंने इनका एक ही वो बयान सुन रहा था, कुदरती आप सामने आ गया 1.5 साल पहले मैं भी नहीं सुनता था। उन्होंने बोला कि ये छोटी सारी जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी, जो आगे वाली जिंदगी है उसका सोचो, जो ना खत्म होने वाली है। ऐसे ही बिल्कुल, और ये अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर लो, इतनी ज्यादा नहीं है, अपने ज़िंदगी के काम भी सही बात है, सही और अपना नमाज ये वो सारा सिस्टम भी चलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से शुरू किया और मैं ये बोलता हूँ कि ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी वल्ला मैं तो ट्रेला चलाता हूँ, मसरूफ़ भी होता हूँ, यानी लंबे रूट पे जाना ये वो टेंशन, लेकिन मुसल्ला और नीचे ड्रम लगाया हुआ पानी वाला ट्रेले के नीचे, वज़ू करता हूँ, जब टाइम आ गया 2 को जमा कर लिया, एक को कर लिया, सुबह फजर टाइम अगर 2 घंटे पहले भी सोया हूँ ना, फजर टाइम उठ के नमाज ज़रूर पढ़नी, नमाज पढ़ के फिर चल पड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आए सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप भी साथ हो? और कौन कौन है? इधर आओ। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। क्या नाम है भैया? साइम। आपका? मेरा नाम सुभान है। आपका? अरहम। अरहम। और आपका नाम क्या है? अच्छा, उमर। आपका नाम क्या है जी? डॉक्टर इमरान साहब। डॉक्टर इमरान साहब। ये बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह जी। आप आए किधर से? सियालकोट से हैं। सियालकोट से। खैरियत थी? ये सारे बच्चों को लेके ये बहुत फैन है, मुझे बहुत तंग करते हैं कि सारा अली से मैंने मिलना है। अच्छा, ठीक है, मिल के आया? तो इनकी विश पूरी की है मैंने। अच्छा, ठीक है। आते ही हमारे टायर पंचर हो गए, बहुत लेट हो गए थे। अच्छा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, फैमिली भी बल्कि साथ ही वो गाड़ी में बैठी हुई है। सही है, यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है फीमेल का तो इंतजाम नहीं होता। हाँ, तो वो भी साथ साथ। फर्स्ट टाइम आए? नहीं, पहले भी आया था, बच्चों को साथ लेके आया। क्या तारुफ था आपको, कैसे तारुफ था इनका, क्या सुना था इनके बारे में, क्या इनकी बारे कोई चीज़ें हैं जो आपको लगा कि यार इनको सुनना चाहिए? देखिए, जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ तो एक तो अहले तशीह ज़्यादा है, ठीक है, और बरेलवी ज़्यादा है। मैं बरेलवी था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मुसलमान हूँ, माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस यही सुना था कि ये जो है ना मरज़ई है, ठीक है, माज़ा से ये मरज़ई थे, बस उनके बारे में यही पता चला था। लेकिन मैंने कहा ये चेक तो करिए मरज़ई कैसे कह रहे हैं मरज़ई। मैंने 1-2 सुनी उनकी, थोड़ी लेंथी थी, टाइम चूँकि मेडिकल में वो टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने फिर उसको मैंने चेक किया है, देखा है। ज़्यादा लोग मुझे बस यही कहते हैं कि यार तू गुमराह हो गया, कोई दलील नहीं देता, कोई बात नहीं बताता, नहीं करते, गुमराह हो गया है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये गुमराह है तो मुझे मेरा ऐसी गुमराही को बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से यही रिक्वेस्ट है, अल्लाह से यही दरख्वास्त है, अल्लाह से यही उम्मीद है, यकीन है अल्लाह पे कि मेरी अम्मी अब्बू मेरे बच्चे इस दीन पे चले जाएं जो अल्लाह और अल्लाह के नबी लेके आए थे। आमीन। अच्छा बच्चों, मिल लिया? ठीक है, कोई नारा कोई याद है इनका? हाँ जी, लगाओ ना। पापे तो शाही कोई नहीं। अच्छा, आप भी मिले हो? कैसे लगते हैं आपको इंजीनियर सर? बहुत अच्छे। अंदर मिले थे आपको? हाँ जी। क्या सुनते हो इनको? हाँ या पापा ने कहा है कि अच्छा सुनते हैं हम? अच्छा, सुनते हो। कौन सा नारा है इनका? हमारे बाबे ते शाही कोई नहीं। हमारे बाबे ते शाही कोई नहीं। ताड़े बाबे ते शाही। अच्छा, आप बताओ जी, आप भी सुनते हो? किसको सुनते हो? सारे लिखो। क्या सुना आपने? तेरे बाबे ते शाही। तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। चलो जी, बहुत शुक्रिया। आप भी क्या? सारा अली से ये सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सारा अली को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनके अम्मी अब्बू इनकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला इनको मज़ीद दीन पे चलने और हमें उस पर अमल करवाने की तौफीक दे। आमीन। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नवीदुर रहमान। नवीदुर रहमान भाई, किधर से आए हो? मैं सियालकोट से आया हूँ। पहले मैं मियाँ वाली में रहता था, तो सियालकोट फिर हम शिफ्ट हो गए, तो अब सियालकोट में होता हूँ मैं। सियालकोट से तो अकेले आए हो? जी, मैं अकेला आया। और भी यार काफ़ी बंदे सियालकोट से, किसी के साथ अटैच हो जो? मुझे मेरा किसी से रब्ता नहीं है, मुझे पता नहीं है किसी के बारे में। तो अच्छा, उस्मान भाई से बात करते तो आपको किसी के साथ अटैच करवा देते इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ खैरियत थी, क्या करने के आए थे? मैं आया था ये तमीमुल कुरान लेने के लिए आया था स्पेशल सिर्फ। और पहले एक बार आया था, मैं अली भाई से मिल कर गया हूँ मैं, तो
वो मिशकातुल मसावी लेकर गया था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है ना खुद इसको पढ़ता हूँ और इसके ऊपर तहकीक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि भाई अली भाई जो है ना वो मतलब की बात सही कर रहे हैं, और मुझे तारुफ भी अली भाई का जो है ना वो पॉजिटिव ही हुआ था। तो उसके बाद क्योंकि मैं शुरू से तहकीक अली भाई की लाइफ स्टोरी और मेरी थोड़ी मिलती जुलती है। अली भाई बस ये है कि वो ऊपर लेवल पे है, मैं थोड़ा नीचे लेवल पे हूँ, क्योंकि मैं भी मियाँ वाली में ना जहाँ मेरे अबू सरकारी मुलाजिम थे ना, तो अब तो अबू मतलब के वफात पा गए हैं, तो अल्लाह ताला जन्नत में। तो ये है कि बस तहकीक कर रहा था मैं, अहले हदीस तक तहकीक करते हुए पहुँच गया था। तो फिर उसके बाद बस फिर मैं समझता था कि ये भाई ये अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद अली भाई की वीडियो में कैसे अली भाई कैसे सुने, किधर से आए अली भाई? मैं यूट्यूब पे हाँ। तो अली भाई इसमें शुरू से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, जो पुरानी वीडियोज़ है ना वहाँ से ज़ुबैर अली ज़ई साहब के साथ और ये वो मैं शुरू से अली भाई को देखता हुआ आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन शुरू की वीडियोस जितनी भी उनमें लाइक भी मेरा है अली भाई की वीडियोस में, और मुकम्मल मैंने देखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि तहकीक करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यही है अली भाई जैसे फर्स्ट टाइम आए आज? ये सेकंड बार आ रहा हूँ मैं। मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई। मिले सही तरह मिले? हाँ जी। क्या लगता है किसी और भी आलिम दीन को मिलना इतना ही आसान है जिस तरह जिन सब बैठ के मिल रहे हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है। अली भाई का एक बड़ापन है कि वो मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि मतलब कि खिलाफत का अमीर जो है हमारे कौन होना चाहिए। अब कोई जो इतने पैसे लगा कर और हमारे पैसों से वो गाड़ियाँ ले लेते हैं और क्या करते होते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि अली भाई के अंदर आज़ी है, और वो उनके अंदर इस तरह के नहीं है कि भाई पैसे के पीछे वो कुछ कर रहे हो। पता चलता है कि एक बंदा अपनी आखिरत बचा रहा है, और हम भी अपनी आखिरत बचा रहे हैं। सारों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। बिल्कुल सही है। अगर आप भी अगर यहाँ पर हो तो आप अपनी आखिरत को देख रहे हो और मामलात को, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो मैं भी अगर कुछ कर रहा हूँ तो अपने आखिरत को बचा रहा हूँ, और अपने ज़रिए हम और दूसरे मुसलमानों तक दावत पहुँचा कर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तौहीद तक आ जाएँ वो भी किसी तरह और बात समझ जाए। ये है कि मैं जब अहले हदीसों के साथ था ना, मेन जो बात बताने वाली है कि जो थोड़े इंटरेस्ट, तो वो ये है कि अक्सर मेरे दोस्त हैं ना वो बरेलवी सारे, क्योंकि मैं अब अहले हदीसों में आ गया था। सही है। तो वो मुझे कहते थे तू जो है ना फ़िरका अहले हदीस के हो गया है, तो वो भी एक फ़िरका है। तो मैं कहता था नहीं यार, फिर मेरा कोई फ़िरका नहीं है, मुझे अहले हदीसों का नहीं पता। मैंने तहकीक करके तौहीद तक पहुँचा हूँ। तौहीद है इनके पास, तो मैंने कहा मैं तौहीद तक पहुँच गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास तौहीद तो है, इतना मुझे पता है। तो यही दोस्तों को मैं समझाता था, तो वो कहते थे नहीं ये फ़िरका है, ये भी है, इस तरह है, ये भी गुमराह है, ये गुस्ताखी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब मैं ये ऐसे दुआ करता था कि यार अल्लाह कोई ऐसा बंदा हो ना जो मैं इनको रोल मॉडल के तौर पे दिखा सकूं कि यार ये बंदा है। अब तो मानेंगे ना, अब तो अली भाई ने साबित कर दिया। जो मैं कहता था ना, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ना मेरी दुआ सुन ली है कि अली भाई को मैं दिखा सकता हूँ कि भाई अब देख लो, अब साबित करो कि ये फ़िरका है, कोई फ़िरका नहीं। हाँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ साबित हो चुकी है। बहुत शुक्रिया भैया, चलो जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।